Am I audible? Yes, you are. हमारी Assalamu आवाज alaikum. को Assalamu alaikum. वा- Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। अहमद साहब, आपसे दरखास्त है कि बराए करम मेरा तारुफ इंतहाई मुख्तसर, 3 जुमलों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप शायर शायर आदमी है, शायराना मिजाज है। मुझे आपसे बड़ा खतरा है जी। अच्छा असल सर। बात असल बात लेक्चर होना चाहिए, काम काम जी की जी बात जी, होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर, मैं क्या मुझे इजाजत है कि मैं आगाज कर दूं? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह करें, बिल्कुल जी। Now, good evening, all of you, and I welcome and I'm thankful to Professor Abdul Rahim Kadwai Saab, who is an eminent scholar, distinguished academician, and visionary leader. So, sir, there are only three words only. So, ओके। beyond his academic achievement, Professor Kadwai is a person of great value, characterized by his deep sense of social responsibility and genuine desire to contribute positively to the society. I would request Professor Abdurrahim Kadwai Saab to please deliver his worthy lecture. Thank you very much, Dr. Ahmed Mustafa Siddiqui. Let me first welcome my young fellow teachers and assure you that you are in very safe and able hands of Dr. Ahmed Mustafa. It is my pleasure and privilege to know him for the last 25 years, and he has always impressed me with his numerous abilities, organizing, academic, and administrative. So, mashallah, such a person as your academic coordinator means that you will have a very rewarding, fulfilling uh, program. Right. Now, let me come to the business. All of you have joined. I will use a mix of Urdu and English. All of you have joined this orientation program on NEP 2020, and my topic is academic leadership. The first point is please be clear about about the term orientation. Actually, orient is a geographical term. The planet Earth is divided into two segments, two parts: the eastern part known as the Orient and the western part known as the Occident, Occident. Naturally, here in this academic sense, in a metaphorical sense, it is no longer a geographical term. When we say Orient and orientation, Dr. Sarvesh, we mean showing a path, guiding you to something, leading you to a particular goal. That is the underlying meaning, spirit, purpose, objective of an orientation program. So, look, national education policy is the goal. This program is the means to take you to that direction, to help you understand what is this national education policy, what are its features, what are its principles, what makes it special. And you know it very well that for years and years, academicians, policymakers, they reflected seriously on the issue of education, whether primary, secondary, or higher education. Then they produce this document. So it is a valuable, thought provoking, imaginative document full of many
new ideas, innovations, strategies, and the objective is to improve the quality of education. That is the unifying principle of this document. So, as I said, this is a very substantial, serious document. It has many features. Under its Unit 3, there is reference to academic leadership. तो मेरा काम जो है आज आपसे ये डिस्कस करना है कि इस पॉलिसी में जो एकेडमिक लीडरशिप की बात कही गई है उसका क्या मतलब है। ये बात तो देखिए तय है, क्लियर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, आपके कॉलेज का मैनेजमेंट, पूरा मुल्क ये चाहता है कि टीचर्स शुड बी एकेडमिक लीडर्स। नेचुरली द क्वेश्चन इज व्हाट इज academic leadership? What does it mean? What is its role? What are its responsibilities? What are the qualifications needed for an academic leader? What makes an academic leader different from a teacher? A teacher, in a traditional sense, is walk, chalk, and talk. लेक्चर दिया, यूनिट खत्म किया, सिलेबस कोर्स कंप्लीट हुआ, छुट्टी, तनख्वाह ली, घर गए। ये एक बहुत ही नैरो, लिमिटेड, पूरा आउटडेटेड कंसेप्ट है टीचर का। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये इस स्टीरियोटाइप को, इस घिसे पिटे कंसेप्ट को खत्म करना चाहिए। उसका मकसद है नाउ ऑनवर्ड्स आप चाहे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, हद ये की प्रोफेसर हो, सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए, सबकी एक डेफिनेशन है। ये तो डेजिग्नेशंस हैं एकेडमिक की, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट है, कोई प्रोफेसर है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईच वन ऑफ यू, अभी मैंने अर्ज किया, कहीं हो, I can see many of you have been working in private institutions. Some of you are in universities. जी, क्या हुआ? हेलो, कह दो, मैं बताया था मेरा प्रोग्राम है आज। राइट, sorry for the disturbance. The point I was telling you, no matter where you are, how senior or junior you are, how qualified you are, मेन चीज ये है कि आप अब से, और जब तक आप सुपरएनुएशन की स्टेज तक नहीं पहुंचते,
you have to perform the role of academic leader. तो अब ये मेन पॉइंट हमारे सामने है, ये एकेडमिक लीडर होता क्या है। अच्छा इसकी चाय के अच्छा प्लीज जगह समान प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। डॉक्टर काफी जगह समान, खुली खुली हो गई, चौड़ी चौड़ी हो गई करके। डॉक्टर समान प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। राइट, थैंक यू। So I will share with you my observations on the definition, the role, the responsibilities of academic leadership. तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसके स्टाइल्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। डॉक्टर समन कैन बी वन टाइप ऑफ academic leader, डॉक्टर सफिया कैन बी another, डॉक्टर लोचन could be another, डॉक्टर उजमा may be a different academic leader. आपके स्टाइल्स, अप्रोचेस, मेथडोलॉजी, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक बात आप सब में कॉमन होनी चाहिए। वो क्या है कि आपकी लीडरशिप इफेक्टिव होनी चाहिए। डॉक्टर इंदु, आपकी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो मेन चीज ये है कि ये तो एक टाइटल हो गया एकेडमिक लीडर का। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू शुड डिलीवर द गुड्स, यू शुड। लीडर कौन होता है? हु ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज। राजा राम मोहन राय, 18th century, Indian society, Bengali society, Hindu society, it has some problems. He was a social reformer. He was a social leader, and he brought about major changes in culture, in society. So Raja Ram Mohan Rai is a leader. Next is the example of our father of nation, Mahatma Gandhi, from 1920 to 1948. A totally different type of India. He struggled, he toiled, he worked very hard, wrote articles in Gujarati, Hindi, Urdu, English, delivered speeches, toured the entire country. As a result, what happened? We became independent. Look, this is what a leader is. He brought about such a major change. A colonial slave servant like people became sovereign, independent, who drafted their own constitution, who established their own government. And today we all know in 70, 80 years' time,
India, which was once a slave to the British, is now a major country in the world. How this became possible? Of course, all Indians, they sacrifice, they died, they faced British atrocities, but it was the leadership of Mahatma Gandhi and others also, whether Gokhale, whether Tilak, whether Madan Mohan Malviya, whether Pandit Nehru, whether Maulana Abul Kalam Azad, a whole galaxy of leaders, regional and national leaders. But the main leader was Mahatma Gandhi. So look here, the point is, as soon as we use the word leader, it means someone who brings out, who brings about a change in thinking, a change in society, a change in social order. This is what a leader is. तो आप देखिए, यूजीसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि आप एकेडमिक लीडर, एकेडमिक फील्ड में ये जो आपके सामने मैदान पड़ा हुआ है, बड़ा खुला हुआ मैदान है, 30-40 साल अभी आपको इसमें काम करना है। इसमें आप क्या रोल प्ले करें, ये नहीं कि आए, प्रिंसिपल साहब को सलाम किया, स्टाफ रूम में बैठ के गपशप की, 1-2 क्लास ले लिए और छुट्टी। पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई, बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजर रही है, और इंटरेस्ट है, हॉबीज हैं, सब कीजिए आप। बीवी बच्चे भी जरूरी हैं, हॉबीज भी जरूरी है, सोशल लाइफ भी जरूरी है, इंटरनेट भी जरूरी है, सोशल मीडिया भी जरूरी है, गॉसिपिंग चैटिंग के बगैर खाना नहीं हजम होता, वो भी जरूरी है। लेकिन मेन गोल, असल जिम्मेदारी, जैसे डॉक्टर अहमद मुश्तबा के बारे में आपको शायद पता हो कि यहाँ हमारे अलीगढ़ में, जो मैं अलीगढ़ी में हूँ तो इसलिए मुझे पता है, बहुत बड़ा एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, अल बरकात। प्री नर्सरी से लेके पीजी तक है, एमबीए भी है, बीएड भी है, बीबीए भी है, और सीनियर सेकेंडरी तो है ही। 24 घंटे उनका बस नहीं चलता, 25 घंटे उसके लिए काम करते रहे। क्या उसका रिजल्ट निकला? एज एकेडमिक लीडर 20 साल से उसमें दिनों रात with his heart and mind लगे हुए हैं कि now for the last 10 years Al Barakat, particularly senior secondary school, is the topmost institution in Aligarh town. और भी अच्छे स्कूल्स हैं, आई नो, लेकिन रिजल्ट जब आएगा 10th का, 12th का, टॉप पोजीशंस किसकी हैं? अल बरकात। सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास कहाँ आ रही है? अल बरकात के स्टूडेंट्स की। डिस्टिंक्शन किसका आ रहा है? अल बरकात के स्टूडेंट्स का ज्यादा। तो ये एकेडमिक लीडर की पहचान होती है कि वो इंस्टीट्यूशन को आसमान तक पहुंचा दे। रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, फाइनेंशियल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, लॉजिस्टिक भी, बट दिस इज व्हाट
the role of a leader is to overcome, to solve the problems. Right. So now I will share with you, according to this Ministry of Education policy document, that is National Educational Policy 2020. All of you are academic leaders and you should have certain qualities, features, वो उसमें दी हुई है, बुलेट पॉइंट्स में दी हुई है। इन्हीं क्वालिटीज को एक एक करके मैं आपके सामने बयान करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रोड मैप, क्लियर आइडिया हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? बताएं डॉक्टर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज Yes, sir. ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, इट इज गुड Yes, दैट sir. यू आर, इट इज गुड दैट यू आर विद मी। तो देखिए, पहली क्वालिटी, पहली क्वालिफिकेशन, पहली फीचर, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो एकेडमिक लीडर की बयान की गई है, जिसका जिक्र किया गया है। थैंक यू डॉक्टर विवेक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन, बट प्लीज लिसन टू द होल session, then we can have this kind of compliments and all that. Anyway, तो पहला जो गुण आप में होना चाहिए, डॉक्टर श्रुति ध्यान से सुनिए, वो है Yes. कम्युनिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम कोई वर्ड शुरू करते हैं CO से या COM से, उसका मतलब होता है ज्वाइन, टुगेदर। सामने वाले का भी इसमें रोल होता है, चाहे वो कोऑपरेशन हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन लॉक हो। जब भी CO वर्ड किसी में लगा होगा, को का मतलब इसी वजह से को सुपरवाइजर होते हैं, को वाइफ होती हैं, को सपोर्टर्स होते हैं, कोलीग है, बहुत कॉमन वर्ड है कलीग। आप कॉलेज में लीग कहते हैं, ग्रुप, कलीग, उस ग्रुप में सभी शामिल। तो कम्युनिकेशन के बारे में पहली बात तो ये आप ये समझ लें कि कम्युनिकेशन जो है आपका होता है, लेकिन दूसरे के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। कम्युनिकेशन आपका है, लेकिन it is focused, it is directed, it is meant for the other person। क्या मतलब हुआ? सामने वाले का ख्याल रखें। अगर सामने वाले का आपने ख्याल नहीं रखा तो आपकी बात में असर नहीं हो, आपकी बात इफेक्टिव नहीं हो, you will not be successful। अच्छा, अभी देखिए, जो मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये भी ध्यान से सुन लें। इसका ताल्लुक बिल्कुल इंग्लिश से नहीं है। चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे हिंदी की,
चाहे उर्दू की या किसी फॉरेन लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन के रूल्स प्रिंसिपल्स एक ही जैसे रहते हैं। इसको ध्यान रखें। ये मत समझिएगा कम्युनिकेशन इंग्लिश का वर्ड है तो इसका मतलब है सिर्फ इंग्लिश ही में कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए और हिंदी में जो समझ में आए बोल दिया, उर्दू तो घर की लौंडी है, जो चाहे करें, ऐसा नहीं। जब भी आप कम्युनिकेट करें, लैंग्वेज कोई भी हो, उसके कुछ रूल्स ऑफ द गेम, उसके कुछ नॉर्म्स, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्लीज पहले तो उनको समझें और फिर उस पर अमल करें। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम कम्युनिकेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्पीच भी शामिल है और राइटिंग भी शामिल है। इस वक्त तो मैं आपसे ओरली कम्युनिकेट कर रहा हूं, मगर इंसान को कभी राइटिंग में कम्युनिकेट करना होता है, कभी स्पीच में। तो जैसे मैंने अभी कहा कि लैंग्वेज कोई भी हो, कम्युनिकेशन के रूल वही रहते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन की फॉर्म चाहे जो भी हो, चाहे वो रिटन हो या स्पीच हो, रूल्स वही रहते हैं, नॉर्म्स वही रहते हैं। वो क्या है, उनको एक एक करके प्लीज समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है, कम्युनिकेशन नीड्स प्लानिंग। कम्युनिकेट करने से पहले प्री कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। माइंड को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। पहले माइंड प्रिपेयर होगा, फिर जबान उस बात को कहेगी। जैसे हम कुछ लिखते हैं, लिखने से पहले सोचते हैं, तो बोलने में भी लिखने से पहले, और आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, बोलने से पहले तौलो। ध्यान से ये बात सुने, अगर आपने बोलने या लिखने से पहले उसके बारे में सोचा नहीं, तौला नहीं, गौर नहीं किया, you will face embarrassment. You will not get success. और अगर आप ध्यान पूर्वक कम्युनिकेट करने से पहले अपने माइंड को, अपनी लैंग्वेज को, अपने स्टाइल को, अपने एक्सेंट को, अपने टोन को, अपने प्रोनाउंसिएशन को अगर आपने ध्यान दे दिया, you will be a very successful person. People will respect you. ये जो डॉक्टर अहमद मुश्तबा है, जिस फैमिली के हैं, इनके मामू वेरी टैलेंटेड। एक मामू है इनके सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, उर्दू के टॉप मोस्ट राइटर। बोलने खड़े होते हैं, लोग समझ जाते हैं कि अभी मोती बिखरेंगे, कुछ मिलने वाला है। जाहिर है वो पैसे बांटने के लिए नहीं खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता है कि जो
कहेंगे वो, that will have value, that will have weight, that will have substance. तो समझने की बात क्या है मैडम श्रुति, अगर आप कम्युनिकेशन पे ध्यान Yes, sir. देती, अगर आप कम्युनिकेशन पे ध्यान देती हैं, you will have everyone's respect, you will have everyone's admiration, और आपका मनोबल जो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। कहीं आपको खड़ा कर दिया जाए, क्लासरूम में तो खैर होती ही आप, सेमिनार में आपसे कहा जाए, कंडक्ट किया जाए, यू विल बी ए सक्सेस। आपसे कहा जाए कि पब्लिक प्रोग्राम है, उसमें बड़े बड़े वीआईपीज आएंगे, उनको रिसीव करना है। If you have communication abilities, you will be able to do it. You can face any audience. कल आपको चांस मिलेगा इंग्लैंड जाने का, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, but because you have self confidence, you have communication ability, even the British, they will be impressed, they will acknowledge your abilities. ये जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दे आर ए सक्सेसफुल, दे आर ए सक्सेस स्टोरी। इनका कोई वहां मामा चाचा नहीं बैठा है, अपनी मेरिट पे, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मीडिया हो, इन्होंने अपने लिए जगह बनाई। सब गैर लोग हैं, उनका रिलीजन अलग है, उनका कलर ऑफ द स्किन अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन मेरिट है आपके पास डॉक्टर श्रुति, तो आपका Yes, sir. बदतरीन दुश्मन जो है वो भी उसको मानेगा, एक्नॉलेज करेगा। मेरिट क्या है? फूल की खुशबू है, उसको कोई रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता, खुशबू तो फैलेगी। तो मेरी आपसे विनती है कि आप कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, यू विल बी ए ग्रेट सक्सेस, you will be a hero in the eyes of your family, students, colleagues, friends, society and country. अभी देखिए मैं आपसे ये बात कहूंगा, आप सब ने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कम से कम 100 से ज्यादा आपको गुरुजी मिले। कितने याद हैं आपको? 5, 10? क्यों याद है? इसलिए जो वो बात कहते थे वो समझ में आती थी,
उनके पढ़ाने का स्टाइल ऐसा था कि दिल में, दिमाग में उतर जाता था। फिर नोट्स, किताब की ज्यादा जरूरत नहीं होती। एग्जामिनेशन की घबराहट नहीं होती। क्यों? उन्होंने आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर कर दिए। दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूं। उससे पहले मैंने बीएससी केमिस्ट्री से किया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और आप जानते हैं इंडियन पेरेंट्स को हर बच्चा डॉक्टर बने, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री में एक पेपर था फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएन तिवारी जी थे। 1975 में उन्होंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया। आज 2025 है, 50 साल हो गए। और 1975 में केमिस्ट्री से बीएससी करने के बाद मैंने इंग्लिश ज्वाइन कर लिया, फिर पीएचडी किया, इंग्लैंड गया, ये हुआ वो हुआ। कभी भूल के केमिस्ट्री छुई नहीं मैंने। मगर आज मुझसे आप पूछिए, मैं आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, एक सांस में बता दूं। और छोड़िए, और सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना स्कूल भी है। एक बड़ा मशहूर स्कूल है, उसको मिंटो सर्किल कहते हैं। नाम तो उसका एसटी हाई स्कूल है। 1970 की बात। उस साल नया नया टिक्नोमेट्री का कंसेप्ट, टिक्नोमेट्री एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस। से पहले कोई जानते ही नहीं था टिक्नोमेट्री। जाहिर है मैथ से बच्चे ऐसे ही घबराते हैं। फिर नया मैथमेटिक्स का ब्रांच। इत्तेफाक से हमारे टीचर जो थे, पंडित जी थे। पहली क्लास थी, पंडित जी आए, मिश्रा जी थे। देखिए 1970 की बात है, और बिल्कुल मुझको नजरों के सामने आए। वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा इंग्लिश में, पंडित, थोड़ा स्पेस दिया, बद्री स्पेस प्रसाद, एक लाइन खींच दी। दूसरी लाइन में लिखा हरि हर बोले। लोग सोच रहे हैं ये क्या हो गया है, उनको तो टेक्नोमेट्री पढ़ानी है, क्या लिख रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोले। बद्री प्रसाद इनका नाम भी नहीं था कि अपना नाम लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे। उनका बेटा टिक्नोमेट्री अगर समझना है तो बस ये याद कर लो। मैंने कहा इसमें क्या मुश्किल है याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले। उनका फिर से बोलो, 3 दफा हम लोगों ने कहा। तो उनका ये जो पंडित है, पी, ये है परपेंडिकुलर। बद्री जो है बेस। तीसरा वाला प्रसाद का पी जो है, ये भी परपेंडिकुलर है। हरि हर बोले, hypnotize, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन hypnotize, साइन थीटा। इसको पलट दीजिए, वो साइन। टैन कोटेंजेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट। साहब 1 मिनट में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंडामेंटल्स होते हैं एक्सप्लेन कर दिए। और कैसे एक्सप्लेन किए? मंत्र से। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले। क्या समझे आप? कम्युनिकेशन एबिलिटी। और ये कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या है?
क्लैरिटी ऑफ माइंड। देखिए, टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, वो है क्लियर कंसेप्ट। मैं देखिए हार्वर्ड से पीएचडी हूँ, 200 पेपर मेरे छपे हैं, मेरे पेटेंट अमेरिका में चलते हैं, मेरी किताबें का रेफरेंस दिया जाता है, मुझको 20 अवार्ड मिले हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रही है, तो हार्वर्ड की डिग्री, पेपर्स, क्वालिफिकेशंस, अवार्ड्स किसी काम के नहीं। काम की बात क्या है? फंडामेंटल कंसेप्ट्स अगर आपने स्टूडेंट्स को कन्वे कर दिए, जिंदगी भर उसके लिए मार्गदर्शक रहे। आप में से बहुत से होंगे इंग्लिश के टीचर होंगे, टेंसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, पूरी ग्रामर जो है इट इज बेस्ड ऑन, जैसे मैथमेटिक्स में होता है रूल्स। वो रूल अगर आपने ढंग से, ये नहीं कि जबरदस्ती डंडा मार के का रटो, रटेगा तो रटना ऐसे ही है जैसे चट्टान के ऊपर बारिश गिरेगी, बह जाएगी। अगर आपने समझा दिया तो उसके दिल में पत्थर की लकीर बन जाएगी, और वो लकीर जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। तो माय डियर फेलो टीचर्स, यंग फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू डेवलप क्लियर कंसेप्ट्स। आपके कंसेप्ट्स देखिए जितने ज्यादा क्लियर होंगे, आपका लेक्चर उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं, आप में इतना आत्मविश्वास होगा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप कुछ नहीं, किसी से नहीं घबराएंगे। ग्रेजुएशन की क्लास हो कोई बात नहीं, पीजी क्लास हो कोई बात नहीं, रिसर्च सुपरविजन हो कोई बात नहीं। और अगर कंसेप्ट आपके खुद ही क्लियर नहीं है तो आप घबराएंगे, बचेंगे। और स्टूडेंट से बढ़ के कोई जज नहीं होता। 2 मिनट में स्टूडेंट को पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है। जी, नोट्स देख के पढ़ा रहे हैं, सोच सोच के बोल रहे हैं, आंखें बचा के इधर उधर देख रहे हैं, तो उसके दिल में इज्जत नहीं रहती। वो मजबूर है, पढ़ेगा आपसे साल के एंड तक, दिल से वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको सर पे वो उसी वक्त बिठाएगा जब उसको ये लगेगा कि आप उसका भला चाहते हैं, आप उसे कुछ दे रहे हैं। देखिए, हमारे कंट्री में बड़ी ग्लोरियस ट्रेडिशन रही, शानदार। गुरु, माता पिता से ज्यादा आदर। क्यों? गुरु देता है,
लेता नहीं। अब तो खैर एजुकेशन का कंसेप्ट बदल गया, लाखों में फीस है। ये जो हमारे गुरु हुआ करते थे, भूखे रहेंगे, कुछ लेंगे नहीं। देने के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं हर एक के लिए। तो कम्युनिकेशन जो है, इट इज द आर्ट ऑफ गिविंग। और गिविंग कब होगी? जब आपके पास कुछ हो। और वही मैं आपको बता रहा था, क्या हो आपके पास? आपके पास क्लियर कंसेप्ट्स, नॉलेज तो, क्वालिफिकेशन तो सबके पास होती है। मेरे सामने आपकी लिस्ट रखी है, 90 टीचर्स हैं, 85 पीएचडी है उसमें। किसी का 5 साल एक्सपीरियंस है, किसी का 7 साल। किसी न एक्सपीरियंस की कमी है, ना बुक्स की कमी है, ना पब्लिकेशंस की, ना कॉन्फ्रेंसेस की, ना सेमिनार की। लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी से क्यों अच्छे हैं? उनका डिलीवरी सिस्टम इफेक्टिव है। वो जब बात कहते हैं, बोलते हैं, चीज एक्सप्लेन करते हैं, एक समा बन जाता है, स्टूडेंट्स को साफ सूझ जाता है। आँख, कान, मुंह सब गुरु जी पर। क्यों? उनको कुछ मिल रहा है। जो मिल रहा है वो उनके सारी जिंदगी काम है। ये क्वालिटी कैसे डेवलप होती है? 2-3 पॉइंट्स आप मेरे सुन लें। पहली बात तो देखिए, ये ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन के लिए अनेक सिचुएशंस होती हैं। हमारी लाइफ ही ऐसी बनाई है गॉड ने, भगवान ने, कि our life is full of situations, settings, scenes। 24 घंटे में कुछ नहीं तो 100 डिफरेंट सिचुएशन आपको सामना करनी है। अभी तो देखिए आप, 4 दिसंबर है, 6:40 हो रहा है, ऑनलाइन स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं। 1 घंटे बाद 7:40 पे क्या सिचुएशन होगी, यू डोंट नो। हो सकता है आपका कोई दोस्त आ जाए, हो सकता है मोबाइल आ जाए, मोबाइल पे किसी का फोन आ जाए, हो सकता है आपको बाहर जाना हो सकता है आपके बच्चे आपको घेर लें, हो सकता है बीवी आपकी, आपका हस्बैंड आपसे कुछ डिस्कस करने लगे। डिफरेंट सिचुएशन। हो सकता है आप घर पे हो या घर के बाहर हो। घर के बाहर दोस्त के घर पे भी हो सकते हैं, होटल में भी हो सकते हैं, टैक्सी में भी हो सकते हैं, सड़क पे भी हो सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन। तो देखिए, पहली बात अपने नोट कर लीजिए, लाइफ इज फुल ऑफ सिचुएशंस एंड every situation demands different kind of communication। एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते आप। कहीं किसी तरह से बात करनी है, कहीं किसी तरह से बात करनी है, कहीं कुछ शब्द प्रयोग करना है,
कहीं कुछ और करना है, तो सबसे पहले देखिए कि ये नोट करें प्लीज पॉइंट आप, वेयर आर यू। अब ये जो मैं वेयर कह रहा हूं ये ज्योग्राफी नहीं है कि वेयर का मतलब है सोशली आपकी पोजीशन क्या है, आपका रोल क्या है, वेयर यू स्टैंड। नेक्स्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला कौन है। Thank you very much, Dr. Giriraj Singh. But please, as I said, please reserve your compliments or negative comments till the end of the session. Right. तो दूसरी बात मैंने ये कही, पहली बात तो वेयर थी, दूसरे हु, सामने वाला कौन। प्रिंसिपल से जिस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे वो अपने 5 साल के बेटा बिटिया के साथ नहीं कर सकते। जिस तरह से आप अपने स्टाफ, लेडी स्टाफ से बात करेंगे अपनी वाइफ से उस तरह से, या अपने हस्बैंड से नहीं बात करेंगे। समाज में हायरार्कीज, सबकी जगह बनी, और आदमी जो अपनी जगह है, अपनी जो पोजीशन है, उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है। ऐसी कोई बात आपने कह दी जो उसको इंसल्टिंग लगी, गिरी हुई लगी, वो आपको छोड़ेगा नहीं। देखिए जबान का मामला बड़ा नाजुक होता है। फिर वही बात है, बड़े बूढ़े कह गए हमारे, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, सामने वाले के लगता जरूर। अब कैसे लगता है, उसका हृदय फाड़ देता है या शहद बन के उसके दिल में उतर जाता है, ये आप पर। तो प्लीज दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, हु पहला था वेयर, दूसरा हु। ये हु कौन है, जैसा हु हो वैसे ही बोली बोली, पिता समान कोई है वैसी बात करें, बेटे बेटी का दोस्त है, समझिए आप ही का बेटा है, उससे उस तरह से बात कीजिए। तीसरी बात है वाई। पहले सोच लीजिए जो आप बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए आप, आपका पर्पस क्या है, आप जो बात कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। और अगर देखिए इस बात का आपने खुद से पहले से डिसाइड नहीं किया कि क्यों बोलना है, तो आप शर्मिंदगी से बच जाएंगे। पटर 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 हर वक्त बोलेंगे, लोग समझेंगे ये तो सनकी है, नॉन सीरियस है, एब नॉर्मल है। और जहां जरूरत है वहां भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने गुड़ खा के मुंह में रखा हुआ है, तब भी लोग आपको छोड़ेंगे, कहेंगे ये एब नॉर्मल है।
कोई फिलोसफर बना रहता है, बात का जवाब ही नहीं देता। ये तो गुरूर है इसके, ये बेवकूफ है, बात समझता नहीं, तो बात बिगड़ जाती। ज्यादा बोलने में भी, कम बोलने में भी। आपकी चाय की प्याली की शक्कर की तरह है, ज्यादा डाल दी तो पीने के लिए अच्छी नहीं, इतनी कम डाली कड़वी लग रही है। तो प्लीज कम्युनिकेशन में 3 बातें पहले से सोच लीजिए। कहाँ पे हैं आप, किससे बात कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। अगर ये आपने सीख लिया डॉक्टर अहमद मुश्तबा की तरह, यू विल बी ए वंडरफुल स्पीकर। ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, ओरेटर, स्पीकर, जो भी कहे आप। तो ये तो हुई पहली क्वालिटी। नाउ आई हैव ओनली half an hour, so I will quickly cover other qualities also. सेकेंड क्वालिटी है, इसको आपकी डॉक्यूमेंट में, एनईपी डॉक्यूमेंट में कहा गया है एम्पैथी। इंग्लिश जो है इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, उसमें ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, उसी से वर्ड बना पैथी। Unfortunately, the mother of your friend died. He said, you are also sad, same feeling, so it is sympathy, same feel. In your colony, a person was caught, he was stealing. You have a negative feeling against that man because he's a criminal. So it is antipathy, opposite feelings. Look, sympathy, support, help, and antipathy is negative, opposite, dislike. यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब है, प्लीज मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, दैट विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एम्पैथी, व्हाट डज दिस मीन। लो, महात्मा गांधी went to England to study law. When he returned, a businessman in South Africa hired him to fight a case in South Africa. He is 20 years old, 25 years old. He went to South Africa. Who is Gandhiji? An Indian. When he reached South Africa, he noted, look, this is a country with 99% black people, ruled by 0.1% white people, and these white rulers, they treat these local 99.9% black people as third class citizens. They are not allowed to enter train, not allowed to enter park, not allowed to do business. He was shocked. Mahatma Gandhi, noble person, he is shocked. He protested against it. Look,
Gandhi is not black. Gandhi is not South African. Gandhi has nothing to do with that. He is there for a job, fight the case, take his fees, come back to India. This is empathy. Having sympathy for a person who is different from you. फ्रेंड के लिए किया तो कोई खास बात नहीं, राह चलते आदमी को जिसको जानते भी नहीं आप, जो आपके धर्म का नहीं, जो आपके लैंग्वेज का नहीं, जो आपके कल्चर का नहीं, उसके लिए भी दया होना, उसको भी मदद करना, ये है एम्पैथी। एक एग्जांपल आपको और दूंगा मैं। हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, बाद में वो वाइस चांसलर भी हुए। मसूद नाम था उनका, सर रॉस मसूद। वो भी इंग्लैंड पढ़ने गए। वहाँ उनके एक दोस्त थे जो आपके इस ग्रुप में इंग्लिश के टीचर्स हैं, फौरन समझ जाएंगे। एक दोस्त का नाम था E.M. फॉस्टर। वो नॉवेलिस्ट थे इंग्लिश के। सर रॉस मसूद इंडिया लौटे घर अपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। कुछ दिन बाद उन्होंने उन्होंने E.M. फॉस्टर को इंडिया विजिट करने की इनवाइट किया। When it was 1920, when Foster came to India, he was fascinated. He liked temples. He enjoyed Krishna Ashtami and Janmashtami celebrations. He loved mosques in Lahore, Hyderabad, Delhi. Again, he noted, I'm telling you 1920, he noted his own countrymen, the white Englishmen, they are treating Indians like worse than animals. 1 year ago in 1919, General Dyer opened fire and in Jallianwala Bagh, Amritsar, in 1 hour, thousands of innocent Indians killed. He was horrified. He noted how the police, DM, other British officials, how badly they treat Indians. He went back home, wrote a novel, and the novel is one of the best English novels, A Passage to India. And in the novel, he condemns, he criticizes the British white, अपने ही धर्म के, अपने ही कलर ऑफ द स्किन के वाइट, अपने ही लैंग्वेज के, अपने ही कल्चर के लोगों को उसने क्रिटिसाइज किया एंड सपोर्टेड द इंडियंस फॉर देयर फ्रीडम मूव। ये क्या है? एम्पैथी। तो ये तो मैंने देखिए आपको एग्जांपल्स दी एम्पैथी की। अब बात ये है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्यों कहा गया है टीचर्स में एम्पैथी हो, आप में एम्पैथी हो? उसकी वजह है, फॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज multicultural, multi-faith, multi-linguistic, multi-regional.
आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा हो वो स्टूडेंट है। अब उसका लेबल क्या है? नॉर्थ ईस्ट का है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या खाता है, क्या उसका कल्चर है। यू शुड हैव only love, affection and guidance for him. ये है गुरु की पहचान। उसको इससे कुछ नहीं लेना देना कि सामने वाला कौन है, क्या चाहिए उसको, इस पे ध्यान दीजिए। और हमारे कंट्री में, देश को अगर आपको आगे ले जाना है तो सबको साथ लेके चलना हो। आप तो सब नॉर्थ इंडिया के टीचर हैं, साउथ का आ जाए, पंजाब का स्टूडेंट आ जाए, कश्मीर का आ जाए, नॉर्थ ईस्ट का आ जाए, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर, ताकि जिंदगी भर वो याद रखे कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं बड़े अच्छे होते हैं। मैं नया था, मैं कुछ वहां नहीं जानता था, उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझको रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरी मदद की। न वो भूलेगा, ना वो अपने बच्चों को भूलने देगा। ये जोड़ने का काम है, जो टीचर से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। क्यों? टीचर की बात स्टूडेंट उतने ध्यान से सुनता है जितने अपने माता पिता की नहीं सुनता। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया टीचर्स को एम्पैथी होनी चाहिए। You get me? This is the second. The third point is grit. GRIT, grit. पक्का इरादा। आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ हिल जाए, आपके कदम न डगमगाए। आपका जो लक्ष्य है, देश की उन्नति, नेशन बिल्डिंग, देश को आगे ले जाना, वो करके दिखाए। ये आपका धर्म होनी चाहिए। ग्रेट डेडिकेशन, डिवोशन, अपना कैरियर वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल। और वो गोल है लीडरशिप। अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने देश को आगे बढ़ाने, ये हुई क्वालिटी नंबर 3। अब है क्वालिटी नंबर 4। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है फोकस। वही बात जो भी मैं कह रहा था, ग्रिड के बिल्कुल क्लियर आइडिया, क्या करना है, कैसे करना है, बेस्ट रिजल्ट्स कैसे लाना है। मैं जो बेस्ट रिजल्ट कह रहा हूं उसका ये मतलब नहीं है कि इम्तिहान में 100% मार्क्स। क्लास में पढ़ाया, बहुत अच्छा किया आपने, क्लास के बाहर निकले, स्पोर्ट्स ग्राउंड में
कमी नजर आई उसको ठीक कराएं। क्लास में एक बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की आपको दिख रहा है दुखी दिख रहा है, चेहरे से पता चल रहा है कि परेशान, क्लास में कुछ नहीं किया, चुपके से क्लास के बाद उसको बाहर ले आके बात करें, क्या हो गया, घर में सब ठीक है, पैसे की परेशानी है, फैमिली की परेशानी है, इमोशनल स्ट्रेस है, कोई तंग कर रहा है, कोई और हेल्प चाहिए। दिस इज व्हाट a leader is. This is what empathy is. This is what leadership is. So please focus on your role as builders of modern, strong India. आप ही चेंज ला सकते हैं। आप जी देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जाती हैं, अपना काम कर रही हैं, अच्छा भी कर रही हैं, असल काम तो आपको करना है। प्राइम मिनिस्टर कितना ही इफिशिएंट हो, कितना ही बढ़िया हो, हर जगह तो नहीं पहुंच सकता। क्लासरूम के प्राइम मिनिस्टर तो आप ही हैं, वहां तो किंग आप हैं। आप सही रास्ते पे चलाएंगे, स्टूडेंट सही चलेंगे। आप ही काम नहीं करेंगे, वो भी सोचेंगे क्या जरूरत है, चैट जीपी से देख के लिख लेंगे, इंटरनेट से कॉपी कर लेंगे, या वेरी सॉरी टू से अनफेयर मीन्स किसी से फोन करा देंगे, पास हो जाएंगे। ये जो है क्वालिटी पे ध्यान न देना, दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज कॉस्टिंग आवर कंट्री वेरी डियरली। 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हम नहीं, क्यों नहीं है? हम आप स्टूडेंट्स का को मैं दोषी नहीं करता, हम आप प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, क्वालिटी, क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कम्युनिकेशन एबिलिटी पे, स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी पे, स्टूडेंट्स की जेन्युइन नीड्स पे ध्यान नहीं देते। क्या कर लेते हैं, ज्यादा ज्यादा वो रट के इम्तिहान पास हो गए, मगर उससे स्टैंडर्ड नहीं हुआ, न उनका न इंस्टीट्यूशंस का न देश का। सिंगापुर इतना सा कंट्री है, 3 यूनिवर्सिटी उसकी टॉप 100 में, जापान की 5 यूनिवर्सिटी, इजराइल की 5 यूनिवर्सिटी। कंट्री का साइज जो है
That is not important. What is important is sincerity. मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। मैंने अलीगढ़ से, इंडिया से इंग्लिश में पीएचडी किया। बहुत मैं भाग्यशाली था। इंग्लैंड से भी मैंने पीएचडी किया, 2 पीएचडी की। आई नो द डिफरेंस। जमीन आसमान का फर्क। अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैं खुद हूँ, जहाँ से पढ़ा, जहाँ से मैं रिटायर हुआ, विच आई लव द प्लेस। But when it comes to academic standards, what I noted in England and what I see at Aligarh, and not just at Aligarh, I've been to many universities in India. क्या फर्क है? पैसे का फर्क नहीं, बिल्डिंग का फर्क नहीं। फर्क क्या है? माय डियर यंग टीचर्स, दिल की बात बता रहा हूँ आपको। फर्क क्या है? सीरियसनेस ऑफ पर्पस। वो लोग जो है सीरियस। देखिए, हम चाहे किसी धर्म के हों, धर्म के मामले में बड़े सिंसियर, बड़े डिवोटेड। हमारी पूजा कहीं अपवित्र ना हो जाए, हमारी नमाज कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके बारे में हम बड़े सेंसिटिव हैं। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। वेस्ट वाले इतने ही सेंसिटिव अपने ड्यूटी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अपने घर के सामने सफाई के बारे में, अपने शहर की सड़कों के सफाई के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में। और वो आगे सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। फिर मैं बात कहूंगा, याद रखिए, कोई प्रधानमंत्री ये चेंज नहीं ला सकता, कोई प्रिंसिपल ये इम्प्रूवमेंट खुद से नहीं कर सकता जब तक आप लोहे की बनी हुई दीवार की तरह उसके पीछे ना खड़े। आप हाथ से हाथ मिला के खड़े होंगे, तभी आपका इंस्टीट्यूशन नैक रैंकिंग में, NIRF में, हर जगह टॉप पोजीशन हासिल करेगा। अभी तक तो मैं बात कर रहा था ये फीचर्स की, क्वालिटीज की। ब्रीफली बता दूं, कुछ चैलेंजेस हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो चली रही है मारा मारी पैसे की। ये बता दूं मैं आपको, इन 5 years 10 years टाइम जो आपके इंस्टीट्यूशंस जिनको UGC या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है सैलरी के लिए और चीजों के लिए, वो नहीं मिले। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। बैंक से लोन लीजिए, अपना कॉलेज चलाइए, अपनी यूनिवर्सिटी चलाइए, फीस बढ़ाइए, इनकम जनरेट कीजिए। स्टूडेंट्स कहाँ से फीस देंगे? बैंक से लोन लें।
ताकि उनके माता पिता पे बोझ ना पड़े। वो लोन कब देंगे? जब नौकरी करने लगेंगे वो इस एजुकेशन लोन वापस करें। ये एक चैलेंज है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए तैयार रहें। ये भी लीडरशिप का पार्ट है। दूसरा चैलेंज है, जो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, मैं यूजीसी का डायरेक्टर रहा, मीटिंग्स में जाता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। वो यूजीसी के चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, वाइस चांसलर से कहते थे, साहब हमारे पास लाखों पोस्टें खाली पड़ी हैं, हमको आप सूटेबल कैंडिडेट्स दीजिए। इस सवाल का जवाब नहीं होता। माय डियर यंग फेलो टीचर्स, प्रॉब्लम आज क्या है? हमारे आपके स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। लाखों की तादाद में एमबीए हैं, ग्रेजुएट्स हैं, 2 जुमले इंग्लिश में, हिंदी में, किसी जबान में बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं करना आती, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, तो उनको जॉब कौन दे? उनके मामा चाचा भी बैठे हो बोर्ड में, वो भी नहीं रखेंगे। चेहरा नहीं देखना हमको, तो काम चाहिए। आप एमबीए हैं, अपनी बात कही नहीं पाते, तो आप बिजनेस क्या चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे? एमबीए का तो मतलब ही होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फेलियर है, उन बच्चों का तो है ही है, आपका मेरा फेलियर भी। हमने उनको ट्रेन नहीं किया, हमने उनको अटेंडेंस दे दी, डिग्री दे दी, एंड रिजल्ट क्या है? अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड का मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयबल। उनको कहीं नौकर रखा ही नहीं जा सकता। दिस इज a challenge. Please be mentally ready for that. तो सम अप मैं कर रहा हूँ 1 मिनट में। एज एकेडमिक लीडर्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स का भी टर्म इस्तेमाल होती है, वो इम्प्रूव करें। अपने स्टूडेंट्स के लिए एम्पैथी रखें, अपने प्रोफेशन में ग्रेट फोकस करें, और जो चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टूडेंट वेलफेयर के, उनको सॉल्व करें, उनको रिजॉल्व करें। माय बेस्ट विशेस टू यू। नाउ 2 minutes are left for your comments, for your questions, for your observations. Most welcome. Thank you very much, Dr. Ahmed Mustafa, and thank you all for giving a patient hearing to what I said. Thank you. And सर thank अनम्यूट you. कीजिए, अहमद सर अनम्यूट कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अहम और मालूमाती खिताब फरमाया, और यकीनन ये एक इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप तैयार करेगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। Okay. इसकी चंद बातें भी अगर हमारे पार्टिसिपेंट इसको एक्वायर करें, तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगी। और सर को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, बल्कि आई शुड कांग्रेचुलेट Quranic Center
for the extension, 1 year extension of Professor Kadwai Sahab as director अरे of. छोड़िए तो और एक्चुअली डॉक्टर अभी दो किताबें भी मुझे अभी हासिल हुई, शर्फ हासिल हुआ कि सर के ऊपर किताबें आई। बहरहाल ये तो सब आपकी क्वालिटीज है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत और सेहतमंद रखे और हम आपसे फायदा उठाते रहें। तो कोई हमारे कोई पार्टिसिपेंट, देखिए सर इस कोर्स में मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ही तवातुर और तसलसल के साथ इसको में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है, टेकिंग इंटरेस्ट। जी बहुत अच्छी बात। आप लोग आपकी लीडरशिप से मुझे यही उम्मीद है जी, बिल्कुल। तो सर आपका हमें ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब आई मस्ट थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक Okay. यू बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। Wonderful. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। It was a great pleasure. चलिए, Dr. Very Hindu, nice. Thank you so much. thanks for your compliment. Thank you for your compliments. I can see. Inshallah, tomorrow next session will start from same time, 3:15. So we will inform you about the resource person. शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you. थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत सर, थैंक यू।